क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन इज। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, सो व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोराइलेशन इन केस ऑफ प्लांट, टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन, एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। डिफरेंसेस क्या है सर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, in cyclic phosphorylation only a single photo system involved, मतलब P700 nm, the single photo system involved, and in this phosphorylation the electron which ejected from the what photo system after what, that is so many transporter, different transporter again came back to its original reaction center। मतलब इन नो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, और when the chlorophyll get excited, the electron which ejected out from this photo system, मतलब P700, again it's came back to its or that is own reaction center, and in this pathway, in this pathway, in this electron transport system or chain, it will produce ATP. But in cyclic photophosphorylation there will be no water splitting। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर मतलब वाटर जो है वो स्प्लिट नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, NADP प्लस NADP H प्लस में कन्वर्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ATP प्रोड्यूस होगा सर इन cyclic photophosphorylation। On other hand, non-cyclic phosphorylation where two photosystem involved and two photosystems simultaneously working and the electron ejected from PS2 and PS1, this electron never came back to its original reaction center, and in the path of this electron transport system they produce ATP, NADPH plus convert into NADPH, H plus, and water also splitted, photolysis of water taken place, oxygen also evolved. Here is the difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Both of these cases ATP formed, but in cyclic photophosphorylation NADPH plus H plus own form, water own split. But in non-cyclic photophosphorylation, NADPH plus H plus formed, water molecule splitted and ATP formed. So सीक्वेंस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, सो अगर ये नॉन साइक्लिक है, सो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन हियर टू फोटो सिस्टम इन्वॉल्व, वन इज PS2, another is PS1. Okay, PS2 activated in 680 nm and PS1 activated in 700 nm. Okay, and here is your chlorophyll A and surrounding, this is quantosome complex, and when sunlight fall over this chlorophyll, the chlorophyll get excited and ejected electron. Clear sir? So this electron first accepted, this electron first accepted by primary electron acceptor, आप इसे pheophytin भी बोल सकते हो, pheophytin. Okay, after that this electron carried out by plastoquinone, okay, then cytochrome
complexes, cytochrome complex मतलब cytochrome B, C, B6F. So collectively they are also called cytochrome complexes. और cytochrome complex के मतलब after that next electron transporter is plastocyanin. Okay, during 700 nm again, that is solar light fall over this quantosome complex and chlorophyll also excited electron, and this electron also kept by primary electron acceptor, and this primary electron acceptor transfer the electron to ferredoxin. Okay, and here in PS1 the whole get generated, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है, होल जनरेट हुआ है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है और इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुई है. एंड दिस इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम what? Now who will fulfill this electron deficiency? The electron comes from pH2 fulfilling the electron deficiency. As a result this electron transport system will going on sir. लेकिन अभी pH2 से भी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुई है, pH2 के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होल है. So who will fulfilling this electron hole? So here you know that, so water molecules splitted, and when water molecules split, proton, electron and nascent form of oxygen form. Okay, अगर 2H2 को आप split करोगे, so 1 mole oxygen you will get. Okay, अगर सिर्फ H2O को आप split करोगे, half mole of oxygen, मतलब nascent form of oxygen. If you split 2H2O, then 4H plus will comes out, 4 electron will comes out, and 1 mole of oxygen will come out, sir. So this electron what is responsible for the fulfilling of the deficiency of electron is in PS2. Okay, sir. So this is basically non-cyclic electron transport system. Simply I am that is telling you it is non-cyclic. Why it is non-cyclic? Because the electron ejected from PS2 and PS1 never came back to its own reaction center. Okay, यहाँ पर PS2 का जो hole है, this deficiency fulfilled by electron which comes from water, और PS1 का जो मतलब electron deficiency है, it was fulfilled by what? The electron comes from PS2. हो गया है थोड़ा बहुत. अभी क्वेश्चन पूछा गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन करेक्ट सीक्वेंस. सो करेक्ट सीक्वेंस अगर आप देखोगे PS1, ये तो नहीं होगा सर, PS1 से PS2 से होगा क्योंकि इट स्टार्टेड 6 ATN. साइटोक्रोम से भी नहीं होगा, PS1 से भी नहीं होगा, तो ये तीन ऑप्शन पूरा क्रॉस कर दो. सो PS2 साइटोक्रोम B65 and here PS1, maybe this one, here is 1. Yes, 1. This sequence is the right sequence. एक बार फिर से देख लो. PS2 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एक्सेप्टेड बाय फियोफाइटिन. ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो आंसर होगा आपका फियोफाइटिन. देन इलेक्ट्रॉन मूव्स टू प्लास्टोक्विनन, देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. और इसी रीजन पे आपका थ्रू केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी फॉर्म होती है, और साइटोक्रोम से आपका प्लास्टोसाइनिन, एंड फाइनली दिस इलेक्ट्रॉन केम बैक टू PS1. और PS1 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुई है, इट वाज अगेन एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. आप इसे फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी बोल सकते हो, FRS भी बोल सकते हो, एंड एक स्मॉल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर. फाइनली इट इज एक्सेप्टेड बाय फेरिडॉक्सिन, और इसी मतलब रीजन पे आपका NADP प्लस जो है वो रिड्यूस्ड होगी NADPH प्लस H प्लस में. ठीक है, सो यहाँ पर जो आंसर राइट आंसर जो है हम लोगों ने निकाल लिया है सर. नाउ मूव्स टू क्वेश्चन नंबर 4. अच्छी तरह से देखो ये क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. प्रोड्यूस इफ वन सुक्रोज मॉलिक्यूल इज यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस. अरे सर बहुत प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है सर. सुक्रोज दिया गया है, हम लोगों ने तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस हम लोगों ने ग्लूकोज का पढ़ा है, यहाँ पर तो दिया गया है क्वेश्चन में सुक्रोज. चलो देखते हैं. अगर ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, फिर से एक बार रिकैप करो, रिवीजन करो.
एग्जाम आपका बहुत मतलब पास है, ज्यादा टाइम नहीं है, एक बार मतलब रिवीजन कर लो पूरा ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज 6 कार्बन ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर एटीपी आप यूज कर रहे हो। हेक्सोकाइनेज, glucokinase also work in this particular step. Glucose 6 phosphate convert into fructose 6 phosphate, ग्लूकोज से फ्रक्टोज मतलब आइसोमराइजेशन, और यहाँ पर एंजाइम भी आइसोमरेज ही होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पर एटीपी फिर से आप यूज करोगे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, and fructose 1,6 bis phosphate during lysis phase convert into dihydroxyacetone. It is also a 3 carbon sugar, and glyceraldehyde 3 phosphate, dihydroxyacetone phosphate, and glyceraldehyde 3 phosphate, मतलब hexo sugar splitted into two 3 carbon sugars. Okay, they are also isomers. Now glyceraldehyde 3 phosphate, continue the reaction, glyceraldehyde 3 phosphate, then 1,3 bis phosphoglycerate, then 3 phosphoglycerate, then phosphoenol pyruvate, then pyruvate. Okay, and again dihydroxyacetone phosphate convert into glyceraldehyde 3 phosphate, and again forming pyruvic acid. That's mean after glycolysis, one hexose glucose forming two 3 कार्बन्स पायरुविक एसिड, मतलब एक ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में लाइसिस के बाद 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म करेगी सर। नाउ दिस पायरुविक एसिड glycolysis taken place in cytoplasm, and for this reason it is common pathway for both the aerobic and anaerobic organisms. मतलब बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं सर, सो हाउ बैक्टीरिया विल जनरेट देयर एनर्जी? सो सिंपल प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए सर। आरबीसी सेल्स जो है दे आर डिवाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मगर याद रखना डेवलप्ड आरबीसी, इनिशियली आरबीसी के अंदर भी मतलब न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, बट व्हेन एवर आरबीसी गेट मैच्योर्ड एट दैट टाइम द न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया द अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स आल्सो डिलीटेड। सो आरबीसी के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस से ही मतलब एनर्जी जनरेट होगी। सो ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड इट इज द इनिशियल पाथवे। सो अभी 1 मोल ग्लूकोज से 2 मोल पायरुवेट, याद रखना दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बार बार इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली द एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एनर्जेटिक्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब ये जो 2 पायरुवेट हैं, मतलब 2 मोल पायरुवेट हैं, first 1 mole pyruvate enter inside the mitochondria. Inside the mitochondria, the pyruvate convert into acetyl CoA. Pyruvate is 3 carbon, acetyl CoA is 2 carbon. Okay, that's mean 2 mole pyruvate forming 2 mole acetyl CoA. One acetyl CoA again bind with oxaloacetic acid, and Krebs cycle started. Oxaloacetic acid and acetyl. Oxaloacetic acid is 4 carbon compound, and acetyl CoA is a 2 carbon compound and forming citric acid, the first stable compound, and for this reason this Krebs cycle also called citric acid cycle. Now citric acid C is aconate, isocitrate, oxalosuccinate, succinyl CoA, succinate, fumarate, malate, oxaloacetate. Okay, Krebs cycle. लेकिन one pyruvate forming 1 acetyl CoA, 2 pyruvate forming 2 acetyl CoA, मतलब after the breakdown of 1 mole of glucose, मतलब 1 mole of glucose मतलब glucose monosaccharide, 1 mole of glucose, 2 mole of pyruvic acid form, मतलब 2 mole of acetyl CoA also form, मतलब यहाँ पर क्रेब्स साइकिल भी 2 टाइम्स होगी सर, ये भी याद रखना। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स विल प्रोड्यूस इफ वन सुक्रोज मॉलिक्यूल यूज्ड टू। अभी यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल
नहीं दिया गया है सर, सुक्रोज दिया गया है। सुक्रोज, सुक्रोज। सो सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सो सुक्रोज को आप फिर से स्प्लिट करो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दीज आर द मोनो यूनिट। तो अगर एक ग्लूकोज, when one glucose lyased during glycolysis forming 2 pyruvate, and later on 2 pyruvate is responsible for formation of 2 mole of acetyl CoA. That's mean glucose and fructose, they are forming 4 moles of acetyl CoA. So here right answer is 4. Very easy. Okay. इसी तरह से क्वेश्चंस याद करना है, स्पेशली एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन। जैसे कभी कभार क्वेश्चन दिया जाता है, हाउ मेनी एटीपीज आर फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। अभी क्रेब साइकिल में हाउ मेनी एटीपीज फॉर्म, हाउ मेनी डायरेक्ट एटीपी फॉर्म्ड इन क्रेब साइकिल। डायरेक्ट एटीपी तो क्रेब साइकिल में एक ही फॉर्म होगी सर, वो भी मतलब जीटीपी से ही फॉर्म होगी। और अगर पूरा एटीपी काउंट करोगे क्रेब साइकिल में, मतलब 1 एसिटिल कोई। ओके। अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ 1 मोल ऑफ पायरुवेट हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रेब साइकिल, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तब आप काउंट करोगे 1 मोल पायरुवेट मतलब 1 एसिटिल कोए, मतलब 1 टाइम क्रेब साइकिल। अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रेब साइकिल, तब क्रेब साइकिल 2 टाइम्स। हियर यू विल व्हाट, इनटू विथ 2, जितने भी एनएडी एच प्लस है, जितने भी एफ हैं, जितने भी एटीपीज हैं, आप 2 से इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। और कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी एटीपीज फॉर्म्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी एटीपीज फॉर्म्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया आफ्टर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पायरुवेट, तब पायरुवेट से एसिटल कोए जब बनती है उस टाइम में एक NADH प्लस कन्वर्ट इनटू NADH2, मतलब यहां पर 3 ATPs। अब 12 ATPs फ्रॉम केप साइकिल प्लस 3 ATP कम्स फ्रॉम एसिटाइल कोए फॉर्मेशन, मतलब 15 एटीपीज। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी एटीपीज फॉर्म्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स मीन 15 एटीपीज, और हाउ मेनी एटीपीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, दैट्स मीन 12 एटीपीज। सो डिफरेंसेस याद रखना, अच्छी तरह से पढ़ना इस टाइप के जो क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पर फ्रुक्टोज दिया गया है, मोल्टोज भी दे सकता है। अगर मोल्टोज है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मोल्टोज के अंदर भी मतलब डाइसैकेराइड को आप स्प्लिट कर रहे हो, सो एक ग्लूकोज इक्वल टू 2 एसिटाइल कोए, 1 ग्लूकोज मतलब 2 ग्लूकोज मतलब 4 एसिटाइल कोए। इस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। फिर से देखना इनकरेक्ट, अभी यहां पर करेक्ट नहीं है, यहां पर दिया गया है इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं दिया गया है, इनकरेक्ट। चलो देखते हैं इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है साइटोकाइनिन हेल्प्स इन लिटरल बड ग्रोथ, literal bud growth. So cytokinin is responsible for rapid cellular division, rapid cell division. So यहाँ पर जो ऑप्शन स्टेटमेंट है साइटोकाइनिन हेल्प्स इन लेटरल बड ग्रोथ, ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2, इथिलीन इज ए गैसियस हार्मोन। इथिलीन, यस सर, इथिलीन प्लांट के अंदर अगर प्लांट हार्मोन को डिवाइड करते हो, एक अब इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। प्लांट के अंदर सम हॉर्मोन्स व्हिच प्रोवाइड पॉजिटिव इफेक्ट लाइक ऑक्सिन, जिब्बरेलिन एंड साइटोकाइनिन, मतलब दे आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। और
नेगेटिव अपियरेंस प्लान के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं जो हॉर्मोन्स. These hormones are also two types. One is abscisic acid, another is ethylene. Okay, so how they create a negative effect? That's when they are responsible for senescence. They are responsible for aging. Okay, so different types of they are responsible for fruit ripening. Okay, so different types of negative effect they will provide. Abscisic acid and ethylene. And ethylene is the gaseous hormone which are responsible for the ripening of food. So ethylene is a gaseous hormone. This statement also right statement, isn't it? Statement number 3, IAA is auxin hormone. Absolutely right. Indole acetic acid, indole butyric acid. Okay, these are basically auxin. These are basically what? Auxins. This statement also right. Statement number 4, 2,4-D is synthetic cytokinin. No, no, no. 2,4-D is basically auxin. And 2,4-D used as a herbicide. Okay, 2,4-D मतलब जो farmers है they use 2,4-D as a herbicide and it is a synthetic auxin. Okay, so the right answer is मतलब यहाँ पर इनकरेक्ट मतलब फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है तो इनकरेक्ट जो है ऑप्शन नंबर 4. सो 4 इज द राइट आंसर.